Hello dear students, myself Dr. Reena Shrivastava and I am your SST teacher, and today we are going to discuss this chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Okay, अब बच्चों देखो, आपने नेशनलिज्म इन इंडिया ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था इंडिया की हिस्ट्री को लेकर के. इन दिस चैप्टर एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन वर्ल्ड. और बेसिकली हम यूरोप की बात करेंगे. ठीक है, अगर आप 300 साल पहले हिस्ट्री में चले जाओ तो आप देखोगे कि इंडिया ही नहीं, आप किसी भी रीजन में जाओ और यूरोप में भी जाओ तो आप देखोगे वहां पे किंगशिप था, नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट नहीं था. ठीक है, 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है जहां पर आपने देखा कि कैसे रिवॉल्यूशन किंगशिप के खिलाफ हुआ और फाइनली वहां पर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई और नेशन स्टेट के फॉर्म में ये इमर्ज होने शुरू हुए. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम कुछ यूरोप के नेशंस लेंगे, उनकी केस स्टडी करेंगे. जैसे विल टॉक अबाउट फ्रांस, विल टॉक अबाउट जर्मनी, विल टॉक अबाउट इटली, विल टॉक अबाउट ग्रीस, पोलैंड, और then we'll try to understand that how these regions emerged as nation states. Okay, so I hope you all are ready to understand this chapter. Although ये chapter थोड़ा सा difficult है, but आप इसको story के form में पढ़ोगे with some examples and make it interesting for yourself so you can remember it. Okay, so let us start this chapter. बेटा सबसे पहला तो सवाल आता है ना कि what is nationalism, है ना. ठीक है, what do you mean by nationalism? अब आपने nationalism in India में तो पढ़ा ही हुआ है. Basically nationalism means feeling of oneness, the feeling of belongingness among the people of we can say living in a similar region, in a same region, and they developed a concept of citizenship, then nationhood also. Okay, so that is nationalism. Fine. और जब भी हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ना तो फ्रांस का नाम जरूर आता है वहां पर. और आप देखोगे ये जो पेंटिंग है ना, इट वॉज पेंटेड बाय अ फ्रेंच पेंटर. कैन यू ऑल नेम द पेंटर? आप पेंटर का नाम बता सकते हो? यस, दैट वॉज फ्रेडरिक सोरो, यू नो. और ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, पेंटर था, और उसने ये फेमस पेंटिंग बनाई विच इज नोन एज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ओके, आप देखोगे कि इसमें जो आर्टिस्ट है वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू शो दैट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप आर इमर्जिंग एज अ नेशन स्टेट, यू नो, getting rid of monarchy, and then they are coming marching ahead with their national symbols, and here it is the national flag. सबसे आगे फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी है और दूसरे नेशंस हैं. And all these people, their efforts are being blessed by the heavenly figures. You can see here, there's heavenly figures, you know, Jesus Christ हैं, angels हैं. Then you can see here, this is Statue of Liberty, जिसके सामने से ये गुजर रहे हैं. I hope you have heard about Statue of Liberty. It was gifted by France to USA while they were fighting for independence when there was American Revolution against the British colonizers, you know. Okay, so this is about it. और जब भी इस पेंटिंग की यू नो बात होती है आप देखोगे तो as I told you it was painted by Frederick Soro, और इसका नाम क्या था? The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic. The artist personified liberty as a female figure, and you know, you can see here that on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Yani it marked the, we can say, the end of monarchical system. Okay, and you can see in Soro's utopian vision the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Then leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. Okay, you know, जब भी हम बात करते हैं, जैसे आप देखोगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, दिस पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सोरो, इन विच ईयर? 1848. ठीक है, यू नो दिस आर्टिस्ट केम अप विद टू व्यूज. यू नो, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको बॉक्स में मिलेगा न्यू वर्ड्स में उटोपियन व्यू एंड द एब्सोल्यूटिस्ट व्यू. ओके, utopian view actually is a view of perfect society, an ideal society which practically does not exist, whereas absolutist view is the view of a society which is related to absolute rule, that is monarchy. Fine. अब उटोपियन व्यू की बात करें तो ये जैसे हमने कहा कि एक आइडियल सोसाइटी का इमेज क्रिएट हो रहा है जहां वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है.
जैसे अगर आप देखो आपका देश डेमोक्रेसी है, क्या सब कुछ ठीक है यहाँ? नहीं, बट स्टिल वी एम टूवर्ड्स आइडियल सोसाइटी ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट टू अचीव. ओके, सो परफेक्शन की तरफ हम एम करते हैं, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, डू रिमेंबर. So imperfections are also beautiful beta, and we should learn to live with imperfections. Then we have 19th century की अगर हम बात करें तो ये वो दौर था जब नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स. और जब भी हम नेशनलिज्म की बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पॉपुलर हुआ, तो इट वाज एक्चुअली आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, एक बड़ा आप देखोगे 19th सेंचुरी में देयर वर रीजन्स व्हिच वर इमर्जिंग एज नेशन स्टेट्स, यू नो. एंड एक फेमस फिलोसोफर था अर्नेस्ट रेनान, यू नो. इसका एक फेमस लेक्चर है which he gave in University of Sorbonne in 1882, और इसका टाइटल था व्हाट इज नेशन. स्पेसिफिक नेशन, दैट मीन्स व्हाट इज नेशन. और बड़ा फेमस लेक्चर था जो उस समय लोगों के लिए बड़ी नई बात थी. और इसमें इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो नेशन है इट्स बेसिकली फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल. ओके, एंड the rulers, they should be elected by the people, and it is the duty of the rulers to work for the welfare of the people. Done. इसके बाद आप देखोगे अगर हम नेशन स्टेट की बात करें कि कौन से रीजन सबसे पहले एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हुए, तो उसमें नाम आता है यूएसए का. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट यूएसए वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी. 13 कॉलोनीज यूनाइट हुई. देयर वाज एन अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एंड फाइनली दे बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1776. और ये 13 कॉलोनीज इन्होंने अपनी सोवरेनिटी को पूल किया, अपने रिसोर्सेज को पूल किया, एंड दे फॉर्म्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रीजन एज अ नेशन स्टेट इमर्ज हुआ दैट वाज स्विट्जरलैंड. यू नो, स्विट्जरलैंड दैट वाज इन 1858. 26 कैंटन्स थे. फेडरलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया भी है. 26 कैंटन्स थे जो यूनाइट हुए और उन्होंने स्विट्जरलैंड बनाया. और ये आप कह सकते हो दुनिया का ऐसा देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. चूंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, इट इज फीजिबल फॉर देम. देन वी कम टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, एंड द आइडिया ऑफ नेशन. अगर हम बात करें कि वो कौन सा इवेंट था जिसने आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म के कंसेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर किया, तो एक्चुअली वो जो इवेंट था दैट वाज वी कैन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इसे पॉपुलर किया. इट गेव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन, यू कैन से. ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है आप देखोगे नेक्स्ट, दैट इज इट ऑल्सो लेड टू द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ठीक है, जब रिवॉल्यूशन हुआ लोगों ने एक सिटीजनशिप का कंसेप्ट डेवलप किया. यू नो, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया बिकेम फेमस, दैट इज फादरलैंड एंड सिटीजन, द सिटीजनशिप. इसके बाद इनका एक ट्राई कलर भी फेमस हुआ विच वॉज द न्यू फ्लैग ऑफ फ्रांस. फिर आता है हमारा द स्टेट जनरल. यू नो, इट वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, नेशनल असेंबली. आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यू हैव रेड हाउ किंग अग्रीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कैसे नया सिस्टम आया. और यहाँ पर जो फ्रांस है इट इमर्ज्ड एज अ वी कैन से अ पावरफुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑल्दो इसमें थोड़ा टाइम भी लगा. डू रिमेंबर, it happened bit by bit in France. Done. Then we come to another section, we can say yes, there were new hymns, you know, which were composed, like oaths were taken, martyrs were commemorated, all in the name of the nation. ठीक है, तो आप इमेजिन करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक सॉन्ग आया था, कौन सा था? मार्सेलेस. दैट वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, रिटन बाय रॉजर द लेस्ले. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, यूनिफॉर्म लॉ आए सिटीजन्स के लिए. जब नेपोलियन आया तो उसने और भी रिफॉर्म्स लाए. नेपोलियन जब आया तो उसके अपने फायदे और नुकसान थे, बट हाँ इसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आया, यूनिफॉर्म लॉज भी लेकर आया. इवन जब नेपोलियन ही केम टू पावर तो ही रिड्यूस्ड, वी कैन से ही अबॉलिश द कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज ऑल्सो. ठीक है, ताकि पूरे फ्रांस में एक इकोनॉमिक यूनिटी डेवलप हो और ट्रेड डेवलप हो. ठीक है, एंड इवन यू नो दैट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो, ताकि जो ट्रेड में कंफ्यूजन है, यू नो, जैसे फ्रांस में अलग अलग रीजन में अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग करेंसी यूज हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आई जाती है ना.
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया। अगर हम रीजनल डायलेक्ट्स की बात करें ना, तो फ्रांस में अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ठीक है। There were different languages which were spoken in, we can say, France, and what happened, they discouraged the local language and they promoted French as the national language of France. तो ऐसा नहीं है जैसे हम इंडिया में कभी कभी बात करते हैं कि हिंदी टू बी प्रोमोटेड एज नेशनल लैंग्वेज, तो ये यूरोप में भी हुआ है जहां पर एक मेजर लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फाइन। The revolutionaries, they further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. फ्रांस में जब भी कुछ होता था ना, तो पता क्या होता था, आसपास के रीजन्स जो थे, जैसे जर्मनी है, आपका ऑस्ट्रिया है, प्रुशिया है, ब्रिटेन है, ये सारे मोटिवेट हो जाते थे यहाँ के रेडिकल्स के। अच्छा, फ्रांस में देखो किंगशिप हटाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाए, तो हम भी लाएंगे। तो फ्रांस वॉज लाइक अ टॉर्च बियरर, लाइक अ मोटिवेटर फॉर होल ऑफ यूरोप। फाइन। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोपगेटिंग नेशनलिज्म, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जैकोबिन्स क्लब्स वर सेट अप इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जैकोबिन्स। जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने जैकोबिन्स के बारे में बच्चों पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो इसमें पता क्या है कि the less prosperous section of people started becoming member of national assemblies, influencing the policies of the government, ठीक है। And their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s, okay। And the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. आपको पता है ये जो नेपोलियन था, जब डायरेक्टरी रूल फ्रांस में आया तो ये काफी वीक हो गया, ठीक है, क्योंकि the directors they used to fight with each other, और this paved the way for Napoleon to become powerful। और जो नेपोलियन था उसने क्या किया, they started capturing the nearby areas, okay। और आप देखोगे कि जब भी फ्रांस में कुछ होता था ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे होता था। ये भी आपकी बुक में सोर्स में दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एक जो फिगर है दैट इज ऑफ बेस्टाइल, डेमोलिशन ऑफ बेस्टाइल 14 जुलाई 1789, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो उसी तर्ज पर आप देखो 9 साल बाद जर्मनी में भी ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। वहां पर एक आप कह सकते हो फोर्ट्रेस था, दिस इमेज बेसिकली क्रिएटेड बाय अ जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमैन इन 1798। इसमें आप देखोगे कि जैसे बेस्टाइल डेमोलिश हुआ, उसी की तर्ज पर जर्मनी में एक प्रोविंस है कैसल, जहां पर एक फोर्ट्रेस था विच वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग। तो इसको लोगों ने, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, इसको इन्होंने डेमोलिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन स्लोगन्स क्या थे, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, दैट मीन्स दीज पीपल वर मोटिवेटेड बाय द इंसिडेंट ऑफ फ्रांस, दैट वाज बेस्टाइल। और ऐसा इंसिडेंट जर्मनी में भी हो गया। तो जो आसपास के किंग थे ना, वो फ्रांस में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे उसको लेकर काफी कंसर्न थे। उन्हें लगता था कि फ्रांस में कोई भी रिवॉल्यूशन होता है तो हमारी पब्लिक भी मोटिवेटेड हो जाती है रिवॉल्यूशन के लिए किंग्स के खिलाफ। और अब ये किंग्स हैं तो ये अपनी पोजीशन को तो स्ट्रेंथन करेंगे ना, दे हैव टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन। तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू कर्ब दोस रेडिकल्स एंड इवन दे विल ट्राई टू कर्ब फ्रांस ऑल्सो। और आप जब जर्मनी का इंसिडेंट पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट influenced it, ठीक है। Now we'll come to Napoleon, how Napoleon also influenced Europe in history, okay, and this we will discuss in the coming video, okay. This is our video 1 and the next part will about Napoleon will come in the next section of the video, fine. So thank you very much.